السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ رائزنگ ویژن وکست بھارت میں اہم رول ادا کرے گا۔ مرکزی حکومت کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ نیتی آیوگ اجلاس سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ ریاست میں کووڈ کا کوئی خطرہ نہیں، موسمی بیماریوں سے نمٹنے عہدیداروں کو ہدایت، وزیر صحت کا جائزہ اجلاس۔ برطانیہ کی حسینہ مس ورلڈ مقابلے کو چھوڑ کر وطن واپس، جانبداری اور ناشائستہ سلوک کا لگایا الزام، منتظمین نے کی تردید۔ اور بینڈ باجے کی گاڑی اور DJ سسٹم لوٹانے کے لیے 15,000 روپے رشوت طلب کرنے والا سب انسپکٹر گرفتار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 2047 تک بھارت کو سپر پاور اور نمبر 1 پر رکھنے کے نریندر مودی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ تلنگانہ ریاست کی ترقی کے منصوبے کے ساتھ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن ڈاکومنٹ کو تیار کیا گیا۔ دہلی میں نیتی آیوگ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے تلنگانہ رائزنگ ویژن پر روشنی ڈالی۔ اس ویژن میں 4 اہم نکات ہیں: غریبوں کی بہبودی، جامع پالیسی کی تیاری، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر،
शफाफ हुक्मरानी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके विजन में अहमियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार और सियासत में सबको मुनासिब मुकाम देने के लिए तबकाती सर्वे किया गया है और 42% तहफ़्फ़ुज़ात बीसी को ST/SC ज़मराबंदी के तहफ़्फ़ुज़ात देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों को वज़ा किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तबकाती सर्वे कराने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है, जिसका वो खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुए तबकाती सर्वे के तजुर्बे को फराहम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तेलंगाना को ड्रग्स फ्री रियासत बनाने का भी ऐलान किया गया और इस सिमत ड्रग्स की रोकथाम में 139 ममालिक में रियासत तेलंगाना सर फहरिस्त है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत को जुमला 3 जोन में तकसीम करने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को डाटा सेंटर हब में तब्दील करने का निशाना भी रखा गया है। विकसित भारत मकासद के हुसूल में तेलंगाना अहम रोल अदा करने की कोशिश करेगा। नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट के फार्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना विजन मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि तेलंगाना की जामे तरक्की में ताउन करें। रियासत में कोविड वबा का अभी कोई खतरा नहीं है। मौसमी सूरत हाल के बाइस सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सर्दी और बुखार के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जिन्होंने कोविड के टीके लिए थे और जिनकी जिस्मानी क़ुव्वत मदाफ़ियत के तगय्युर के सबब JN1 वेरिएंट के चंद केसेस सामने आए हैं, जिन्हें दवाखानों से रुजू किया गया है। ये केसेस भी कंट्रोल में हैं। अभी कोई तशवीश की बात नहीं है। फिर भी किसी इम्कानी सूरत हाल से निमटने रियासती हुकूमत चौकसी अख्तियार की हुई है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के आला अहदेदारों के साथ रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मौसमी बीमारियों से मुताल्लिक़ भी अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी हेल्थ क्रिस्टीना चोगंटो ने सेहत आमा के बारे में वाकिफ करवाया। अहदेदारों ने मुल्क और बैरून मुल्क कोविड केसेस से वाकिफ करवाया। मुल्क में कोविड की नई किस्म JN1 के चंद एक केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर तशवीश की कोई बात नहीं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से न कोई नई हिदायत और न ही कोई नए मशवरे रियासतों को दिए गए। मामूली वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जो फिलफौर खतरे की अलामत नहीं है। इस सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने किसी इम्कानी सूरत हाल से निमटने टेस्टिंग किट्स, दवाएं और दीगर सहूलतें दस्तियाब रखी हैं। आवाम से कहा गया है कि वो किसी तशवीश में मुब्तला न रहें, अलबत्ता अपनी सेहत का ख्याल रखें, मच्छरों की अफजाइश को होने न दें, घर के अंदर पानी को ठहरने न दें। मानसून की आमद पर होने वाली बीमारियों, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह से आवाम को आगाह करते हुए आबी बीमारियों से बचने की तलकीन की गई। वज़ीर मौसूफ ने शहरी और देही इलाकों में आवाम में सेहत से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी करने की अहदेदारों को हिदायत दी। मौसमी अमराज से निमटने दवाओं का वाफिर स्टॉक रखने को कहा। महकमे सेहत के साथ महकमे पंचायत राज, बलदी नज़्म व नस्क और दीगर महकमेजात के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए मौसमी अमराज से निमटने का मशवरा दिया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने नेशनल हेराल्ड मामले में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का नाम आने पर वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा ने हाउसिंग स्कैम पर नाम आने पर इस्तीफा दिया था। रेवंत रेड्डी को अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर रेवंत रेड्डी इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को उनसे इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। कांग्रेस लीडर्स ने येदियुरप्पा से स्कैम में नाम आने पर इस्तीफे का मुतालबा किया था। KTR ने यह भी कहा कि तेलंगाना पर रेवंत रेड्डी का मनहूस साया पड़ा है और हमें इससे नजात की जरूरत है। कौमी बीजेपी की नायब सदर और रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के अतिये के मामले में ED ने रेवंत रेड्डी का नाम दर्ज किया है। इस पर अब तक रेवंत रेड्डी ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि DK शिव कुमार ने अतिया देने से मुताल्लिक एतराफ़ किया है। रेवंत रेड्डी ने अतिये के नाम पर कितनी अफराद से रकम वसूल की है। रेवंत रेड्डी और KTR एक दूसरे को बचा रहे हैं। कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद सिर्फ ऐलानात किए। BRS के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। DK अरुणा ने कविता को KCR को लिखे गए मकतूब के मंजरेआम पर आने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कविता और BRS पार्टी को ही जवाब देना चाहिए कि आखिर किस तरह से ये मकतूब का इफ्शा हुआ है। उनका कहना था कि ये उसी का काम हो सकता है जो किसी को फायदा पहुंचाना चाहता है। BRS पार्टी बखूबी इससे वाकिफ है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।
बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल के कविता की जानिब से अपने वालिद को लिखे गए मकतूब पर सियासी वबाल देखा जा रहा है। अमेरिका के दौरे से लौटी कविता ने इस बात का इतराफ़ किया कि 2 हफ्ते कबल उन्होंने पार्टी के बास कायदीन की खदशात से पार्टी सरबराह को वाकिफ करवाया था। उनका यह भी कहना था कि किसी मखबर ने यह ख़त का इफ्शा किया है, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ताहम कविता ने कहा कि केसीआर हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन कुछ शैतानी ताकतें पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इन हालात में हम केसीआर के साथ खड़े हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर को इख्तिदार के भूत ने पकड़ लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कविता की झलक से केटीआर का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। केटीआर की प्रेस मीट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कविता के मकतूब से केटीआर का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, इसलिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। कालेश्वरम स्कैम में केसीआर हरीश राव को दी गई नोटिस से केटीआर को शॉक लगा है, इसलिए वो नोटिस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के 3 हिस्सों में एक हिस्सा कविता को अलहदा होना तय है। एक तरफ कविता, दूसरी तरफ कालेश्वरम मुकदमे से परेशान केटीआर को समझ नहीं आ रहा है। आखिर में मीडिया मेरे तनकीदों पर उतर आए हैं। माजी में इससे पहले बीजेपी कायदीन की तारीफें और हमदर्दी जता रहे हैं। इन दोनों जमातों में इत्तेहाद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी वजीर आला और कांग्रेस से मुताल्लिक केटीआर के बयान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर की दोख्तर कविता ने खुद कहा है कि उनके वालिद के आसपास कैसे लोग जमा हैं। उनका कहना था कि कविता के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अफशा होने की बात थी। अब कविता ने रास्त मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके वालिद के खिलाफ अतराफ में शैतानी ताकतें मौजूद हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस को निशाना बनाने से पहले ही बीआरएस पार्टी अपना मुहासिबा कर ले। इससे पहले गांधी भवन में सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब में वजीर ने शिरकत की और केक काटा। पाकिस्तान की करतूतों को बेनकाब करने और दुनिया से वाकिफ करवाने के लिए हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट के वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। आज बीजेपी के MP बी पांडा की क़यादत में एक वफ्द खलीजी रियासत बहरीन पहुंच गया है। इस वफ्द में साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा के MP रेखा शर्मा, सीनियर साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद, राज्यसभा के MP सतनाम सिंह सिंधु, बीजेपी के MP निशिकांत दुबे शामिल हैं। ये वफ्द सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का भी दौरा करेगा। बहरीन रवाना होने से कबल मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वो ग्रुप 1 का हिस्सा हैं और हम पहले बहरीन जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दौरे की तफसीलात बताई। उन्होंने पहलगाम हमले को तकलीफदाह करार दिया। पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्द सरगर्मियों का भी बैरिस्टर ओवैसी ने हवाला दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सरगर्मियों से हम जिन ममालिक का दौरा कर रहे हैं वहां की क़यादत को इससे वाकिफ करवाया जाएगा। देखिए, हम ग्रुप 1 में है जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। हैदराबाद में हो रहे मिस वर्ल्ड मुकाबले को छोड़कर बरतानिया की हसीना मुल्क वापस लौट गई हैं। मिस ब्रेट मेला की वतन वापसी को लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि ज़ाती वजूहात की वजह से वो अपने वतन वापस लौटी हैं। ताहम बरतानिया पहुंचने के बाद ब्रेट मेला ने कुछ संगीन इल्जामात लगाए हैं, जिसमें खास तौर पर उनके साथ किए गए सलूक का हवाला दिया गया है। बरतानिया के मशहूर द सन मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बरतानवी हसीना ने जानिबदारी का भी इल्जाम आयद किया। उधर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड इंडिया की सदरनशीन जूलिया मुरली ने बरतानवी मीडिया की जानिब से आई खबरों को बेबुनियाद करार दिया है।
उन्होंने बताया कि बरतानवी हसीना की वालिदा की तबीयत नासाज थी और उनकी वतन वापसी का बर वक्त इंतजाम किया गया। बरतानिया की रनर अप को ब्रेट मिडला की जगह मौका दिया गया है। उन्होंने बरतानवी हसीना का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात और यहाँ की मेज़बानी के अलावा बिरयानी की भी सताइश करती नजर आई। Being out in India, I'd never experienced going to somewhere like that before. Obviously, there's a very dramatic class system out there, and I hadn't witnessed, firsthand that sort of poverty before. And, getting into coaches most evenings and being driven through the streets of India, it didn't sit well with me. Seeing these people lying on the streets, seeing these people that are living in slums, this is real life. This isn't a movie. But beyond those walls, when someone's literally begging out for help, I just at one point wanted to take my plate and give them my food, give out a reaching hand on what I can do to help. It's not right that we're all having a dinner with dignitaries one evening, and there's clearly favoritism amongst some girls because I didn't get the opportunity to speak about my Beauty with a Purpose once or what I'm campaigning for. I wasn't there to entertain conversations with dignitaries that have helped the system. I'm there to talk about what I'm championing for and what I believe in and what I believe is right. And I wanted to help, so I gave out my hand. And then I got told that I could not communicate with this person because they are classed as lower and I have to get back onto the coach. तेलंगाना की वजीर सीताक्का ने कहा है कि केटीआर का जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है। मीडिया के लिए अपने बयान में सीताक्का ने कहा कि कविता ने जिस शैतानी ताकतों का जिक्र किया है वो केटीआर हो सकते हैं। केटीआर कालेश्वरम कमीशन के सामने आने से खौफजदा हैं, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं। केटीआर को अपनी दिमागी हालत पर तवज्जो देनी चाहिए। सीताक्का ने कहा कि मोदी की तारीफ हासिल करने के लिए केटीआर ईडी की बार बार बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जब पीसीसी सदर थे उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि केटीआर अपोजिशन के तामीरी रोल अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुलाबी खुली की शक्ल में जो रकम हासिल की गई थी वो कहाँ गई, इसका पहले जवाब दें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एमपी मल्लू रवि ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक केटीआर के रिमार्क की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर्स को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सरकारी स्कूल्स में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुतहर्रिक हैं। नए तालीमी साल के आगाज से कबल मंडल सतह पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए प्राइमरी और हाई स्कूल सतह पर तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में आया। चादरघाट सिटी मॉडल स्कूल में हुई इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक टीचर्स को तालीमी तरीक़ेकार से मुतालिक ज़रूरी मशवरे दिए गए। रुकन असम्बली ने टीचर्स से मुलाकात करते हुए मौसर तालीम के सिलसिले में हिदायत दी। तालीम के साथ तलबा की सलाहियतों को उभारने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर महकमा तालीम के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमतन गोश मसरूफ हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली ने अकबरबाग डिवीजन में पीने के पानी की लाइन को हुए नुकसान का ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। रुकन असम्बली ने गवर्नमेंट प्रेस रोड के पास ब्रिज के कामों का मुआयना किया। दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुतालिक हिदायत दी। जीएचएमसी प्रोजेक्ट के ओहदेदार इस मौके पर रुकन असम्बली के हमराह मौजूद थे। हल्के नामपल्ली की 270 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजलिस की तरफ से की जा रही नुमाइंदगियों का तफसीली जिक्र किया। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली माजिद हुसैन से इज़हार तशक्कुर किया। हल्के नामपल्ली के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को मजलिस के अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली और रियाजुल हसन आफंदी ने 51 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 22,70,000 रुपये बताई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरगर्म कारकुन सैयद आसिफ भी मौजूद थे।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद के हमरा दौरा करके साफ सफाई और दीगर कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने हकीमपेट, सालार ब्रिज, टोली चौकी, मोहम्मदी लाइन्स, शाह हातिम झील, कटोरा हाउस, मोती दरवाजा और गोलकुंडा के अतराफ वकनाफ के इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर बलदिया की टीम ने कचरे के बड़े अंबार की निकासी की, जिससे गुज़िश्ता दिनों की बारिश की वजह से हिफ्ज़ान सेहत की मसाइल पैदा होने का इम्कान था। ईद उल अज़हा के पेश नज़र भी उन्होंने ज़बीहा के जानवरों की बाक़ियात को बर वक्त उठाने के लिए कहा ताकि हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा न हों। इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी और अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्के बहादुरपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सेटविन टेलरिंग सेंटर से कोर्स पूरा करने वाले खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रनमस्तपुरा डिवीजन में चलाए जाने वाले सेटविन टेलरिंग सेंटर से 10 खवातीन ने टेलरिंग कोर्स पूरा किया है, जिन्हें सिलाई मशीनें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि हर साल जितनी भी खवातीन मज़कूरा कोर्स को पूरा करती हैं, उन्हें भी बिला लिहाज तादाद सिलाई मशीनें मजलिस की जानिब से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी और कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार किया जाता है, और ख्वाह वो तरक्याती कामों के लिए हो या खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने के लिए, उनकी खिदमात काबिल सताइश हैं। इस मौके पर अरकान बलदिया मोहम्मद कादर और मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर इतवार 25 मई को दोपहर 2 ता 2:30 बजे इंसानी जंजीर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की रियासती एहतजाजी कमेटी बराए तेलंगाना ने शहरियों बिलखुसूस आमतुल मुस्लिमीन से इस इंसानी जंजीर में हिस्सा लेने की अपील की है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तलिफ उलमाए कराम, मशाइखीन अज़्ज़ाम, मुख्तलिफ तंजीमों इदारों से वाबस्ता शख्सियात ने अवाम से इंसानी जंजीर एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इस्तदा की है। ख़वातीन और नौजवानों की तंजीमों की जानिब से एक अलहदा अपील जारी की गई है। शहर में मजलिस के अरकान मुकर्ररा व कॉरपोरेटर्स को इंसानी जंजीर के लिए अवाम से अपील करता देखा गया। वकला और दीगर शोबों से वाबस्ता कायदीन ने भी इंसानी जंजीर को कामयाब से हमकिनार करने बयानात जारी किए हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने वाजे किया है कि ईद उल अजहा के लिए लाए जा रहे मवेशियों के लिए फिट टू स्लॉटर का सर्टिफिकेट लाजमी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी चंद्रमोहन ने बताया कि जानवर लाने वालों की तरफ से दूसरे सर्टिफिकेट्स पेश किए जा रहे हैं, जबकि वेटनरी डॉक्टर की जानिब से ज़बीहा के जानवर के लिए सेहतमंद सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अत्तापुर और रामदेवगुड़ा के पास चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, मजीद एक चेक पोस्ट कायम किया जाएगा। मवेशी लाने वालों को यह मशवरा भी दिया गया है कि गाड़ियों में गुंजाइश के मुताबिक ही जानवर लाएं। ज्यादा जानवर लाने से जानवरों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। महकमा इंसदाद रिश्वत ने साइबराबाद जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी के मुताबिक बैंड वालों की गाड़ी और डीजे सिस्टम को जब्त किया गया था। गाड़ी और डीजे सिस्टम को वापस करने के लिए सब इंस्पेक्टर शंकर ने नागेंद्र के जरिए 15,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। बैंड वाले ने इस सिलसिले में एसीबी से रुजू होकर शिकायत की। महकमा इंसदाद रिश्वत की टीम ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर शंकर और नागेंद्र को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर को मजीद कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। सारिक सेलफोन का सरका करके फरार होते वक्त सड़क हादसे में जख्मी हो गया और पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। हैदर शाह कोट पर सड़क हादसा पेश आया। नामालूम गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में जख्मी होने वाला शख्स चोर था। मुकामी अफराद ने जख्मी चोर के पास फोन की घंटी पर इसका फोन उठाया। फोन उठाने पर मुकामी अवाम को पता चला कि यह सरका किया हुआ फोन है, जिस पर मुकामी अफराद ने नारसंगी पुलिस के से हवाले कर दिया।
महकमे आबकारी मेदक की टीम ने टोपरान टोल प्लाजा के पास छापा मारकर एक शख्स के पास से करीब 400 ग्राम अफीम बरामद की है। इस सिलसिले में महकमे आबकारी के असिस्टेंट कमिश्नर जी श्रीनिवास रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि एक्साइज इंस्पेक्टर गांधी नायक की टीम ने मामूल के मुताबिक तलाशी मुहिम चलाते हुए गैरकानूनी तौर से राजस्थान से हैदराबाद अफीम मुंतकिल करने वाले राम दिया की तलाशी ली तो उसके पास से अफीम दस्तयाब हुई। जिस पर पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। आबकारी पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 400 ग्राम अफीम और एक मोबाइल फोन बरामद किया। आबकारी पुलिस की टीम में हिस्सा लेने वालों में सर्कल इंस्पेक्टर बी गांधी नायक, सब इंस्पेक्टर ए अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम के अलावा दूसरे शामिल थे। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने तलाई चैन, बाइक चोरी और मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलविस 5 सारिकों बशमूल खातून को गिरफ्तार किया है। डीसीपी चंद्रमोहन ने मीडिया को बताया कि शिवा और भारत ने 14 मई को टोली चौकी के पास वाक़े खानगी स्कूल के सामने खड़ी खातून का मोबाइल फोन छीनकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी का मुशाहिदा किया और सारिकों को गिरफ्तार किया। मसरूका मोबाइल फोन जब्त किया गया है। दूसरी कार्रवाई में राजू नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया जो मोबाइल फोन छीनने की वारदात में मुलविस था। इस दौरान लंगर हाउस पुलिस ने भी बाइक के सरके में मुलविस गोपाल को गिरफ्तार किया। मेहदीपट्टनम पुलिस ने 22 मई को तलाई चैन छीनने की वारदात में मुलविस खातून संजना को गिरफ्तार किया है। संजना के पास से 45 ग्राम की तलाई चैन जब्त कर ली गई है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बरकी शॉक लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है कि नारा चंद्र बाबू नायडू कॉलोनी में इमारत में बरकी शॉक लगने से यह वाकया पेश आया। महलूकीन में एक की शनाख्त मुतैया की हैसियत से की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वाकये की तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की बेसेंट रोड के पास बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया गया। इंस्पेक्टर नागाबौली ने बताया कि नामालूम शख्स ने कंट्रोल रूम को फोन करते हुए बम रखे जाने की इत्तला दी। ताहम अभी तक किसी भी तरह की शय बरामद नहीं हुई। पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 Tombs टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना राइजिंग विजन विकसित भारत में अहम रोल अदा करेगा। मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं। नीति आयोग इजलास से वजीर आला का खिताब। रियासत में कोविड का कोई खतरा नहीं। मौसमी बीमारियों से निपटने ओहदेदारों को हिदायत। वजीर सेहत का जायजा इजलास। बरतानिया की हसीना मिस वर्ल्ड मुकाबले को छोड़कर वतन वापस। जानिबदारी और नाशाइस्ता सलूक का लगाया इल्जाम। मुंतजमीन ने की तरदीद। और बैंड बाजे की गाड़ी और डीजे सिस्टम लौटाने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत तलब करने वाला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।